آج کل دبئی اپنے شاہانہ اور آرام سے بھرپور زندگی گزارنے کے طریقوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ اپنی چھٹیاں اچھے طریقے سے گزارنے اور بھرپور انجوائے کرنے کے لیے دبئی کا رخ کرتے ہیں۔ دبئی میں دنیا کے مشہور ترین ہوٹلز جیسے کہ برج خلیفہ وغیرہ موجود ہیں، جو کہ لوگوں کی توجہ کا ذریعہ ہیں۔ یہاں بہت سارے مشہور ریسٹورانٹس اور سیر و تفریح کے لیے بہترین جگہ بھی موجود ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک مشہور پروجیکٹ دی ورلڈ آئلینڈز دبئی کے بارے میں، جو کہ بری طرح سے ناکام ہوا اور دبئی کی اکانومی کو بہت نقصان ہوا۔ 2000 میں لانچ ہونے والا یہ پروجیکٹ دبئی کے لیے ایک بہت بڑے مالی نقصان کا سبب بنا۔ 2008 کے مالی حادثے کے بعد اس کی تعمیر بالکل روک دی گئی۔ یہ پروجیکٹ، جو کہ کبھی دبئی کے سب سے بڑے پروجیکٹ میں سے ایک تھا، اب وہ صرف ریت کا ایک شہر ثابت ہوا۔ لیکن جیسے جیسے دبئی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور بڑی بڑی کمپنیز نے دبئی میں انویسٹمنٹ شروع کی، کیونکہ بہت سے لوگ اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے دبئی کا رخ کر رہے تھے، تو ایک بہت مشہور ہوٹل کمپنی اناٹارا نے اس پروجیکٹ میں 70 روم کا ایک ریزورٹ کھولا، جس سے اس پروجیکٹ کو ایک نئی زندگی ملنے کی ایک امید پیدا ہو گئی۔ آئیے پہلے جانتے ہیں کہ دی ورلڈ آئلینڈز دبئی کیا ہے، یہ کہاں پر واقع ہے، ان کا رقبہ کتنا ہے اور یہ اتنی بری طرح سے کیوں فیل ہوا۔ پرشین گلف میں دبئی کے ساحل سے تقریباً 2.5 میل کے فاصلے پر واقع دی ورلڈ آئلینڈز بہت سارے چھوٹے جزیروں کا ایک مجموعہ ہے، جو کہ اس دنیا کو چھوٹی شکل میں نقل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ہر جزیرے کا نام اس سے جڑے ہوئے ملک کے نام پر رکھا گیا ہے۔ جیسے کہ دبئی میں بہت ساری بڑی بڑی بلڈنگز بنائی گئی ہیں، تو بے شک یہ جزیرے کوئی قدرتی طور پر نہیں بنے، جبکہ انسانوں کی طرف ہی سے بنائے گئے ہیں۔ یہ مین میڈ آئلینڈز گلف کوسٹ سے ریت نکال کر اور اس کو ایک جگہ پر منتقل کر کے بنائے گئے تھے، جس میں بہت سارے لاکھوں ٹن کے پتھر بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ ان جزیروں کی ٹوٹل تعداد 300 ہے، جن میں سے ہر ایک کا رقبہ 250,000 سے 900,000 اسکوائر فیٹ تک ہے۔ ان جزیروں کا ٹوٹل ایریا تقریباً 5.4 مائلز ہے۔ جب دی ورلڈ آئلینڈز کا اعلان کیا گیا تھا اور دنیا سے بہت بڑے مشہور لوگوں نے ان آئلینڈز کو خریدنے کے لیے انویسٹمنٹ کی تھی، اس کے باوجود 2008 کے مالیاتی حادثے کی وجہ سے ان آئلینڈز پر کام روک دیا گیا تھا۔ اس وقت یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ تقریباً $15 بلین پہلے ہی اس پروجیکٹ پر خرچ ہو چکے ہیں، لیکن صرف ایک ہی جزیرہ مکمل ہوا تھا۔ کام رکنے پر جو افراتفری پیش آئی، اس کے دوران بھی یہاں پر کام کرنے والوں کو اس افواہ پر انکار کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ جزیرے دوبارہ سے سمندر میں ڈوب رہے ہیں۔ 2008 کا فائنینشیل کرائسس اور پراپرٹی کا بحران اور 2014 میں ہونے والی تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی اس پروجیکٹ پر اثر کرنے والی سب سے پہلی چیز تھی۔ اس واقعے کی سب سے اہم چیز یہ تھی کہ اس مالی بحران کو دیکھتے ہوئے پرائیویٹ سرمایہ کاروں نے اپنی ساری انویسٹمنٹس اس پروجیکٹ سے واپس نکال لی تھیں، جس کی وجہ سے ڈیولپرز نے لاکھوں ڈالر قرضے اٹھائے اور بہت سارے پیسے کیسز وغیرہ میں لگا دیے گئے، جس کی وجہ سے اس پروجیکٹ کو روکنا ہی پڑا اور اس کے دوبارہ شروع ہونے کی سب امیدیں ختم ہوتی چلی گئیں۔ یہ مسائل آج بھی جاری ہیں اور ان کے ختم ہونے کے کوئی آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ 2018 کے پہلے حصے میں ہی ریئل اسٹیٹ کے قانون میں کچھ تبدیلی کی گئی، جس کی وجہ سے فروخت کی قیمتوں میں 46% کمی ہوئی، جبکہ مکانوں کی قیمتوں میں 15% کمی ہوئی، اور اس وجہ سے بھی اس پروجیکٹ کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا اب اس پروجیکٹ کے دوبارہ شروع کرنے کے لیے کچھ تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ ان تجاویز میں یہ پیش کیا گیا ہے کہ اب ان آئلینڈز پر بہترین آرام دہ اپارٹمنٹس اور بڑے بڑے ہوٹلز بنائے جائیں، کہ جن میں دنیا کی بہت بڑی بڑی کمپنیز بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کریں گی۔ 2010 میں ایک سمندری کمپنی پینگوئن میرین نے اس بات سے خبردار کیا تھا کہ دی ورلڈ آئلینڈز دوبارہ سمندر میں ڈوب رہے ہیں۔ یہ کمپنی ان آئلینڈز کو ٹرانسپورٹ فراہم کرتی ہے اور اس لیے حفاظتی مقصد کے تحت پیمائش کرتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ان 300 جزیروں کو بنانے کے لیے جو ریت سمندر کی تہہ سے نکالی گئی تھی، وہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ پر واپس جا رہی ہے۔ فروری 2010 میں اسپیس اسٹیشن سے ایک تصویر لی گئی اور وہ تصویر اس بات کا ثبوت پیش کرتی ہے کہ پرشین گلف کا پانی بڑھ رہا ہے اور جزیرے آہستہ آہستہ ڈوب رہے ہیں۔ اس وجہ سے آئلینڈز کے درمیان جو راستے ہیں وہ رکاوٹ بن گئے ہیں۔ بہرحال اس پروجیکٹ کے ڈیولپر نے پینگوئن میرین پر کیس کر دیا اور اس افواہ کو رد کر دیا۔
ये केस डेवलपर्स ने जीत लिया था। नासा की मालूमात की वजह से पाम जुमेरा भी 5 मिलीमीटर सालाना की रफ्तार से डूब रही थी। इस प्रोजेक्ट के फेल होने की एक बहुत बड़ी वजह तामीराती मटेरियल की खराब क्वालिटी और उसका वक्त से पहले कटाव भी है। ये जजीरे बुनियादी तौर पर रेत और चट्टानों से बनाए गए हैं। हालांकि दुबई में बहुत सारा सहरा है, लेकिन फिर भी इन आइलैंड्स को बनाने के लिए समंदर की रेत को इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये ज्यादा देर अपनी जगह पर रुकती है। एक रिसर्च में ये नतीजा हासिल किया गया है कि दुबई के साहिल हर साल 15,000 क्यूबिक मीटर रेत खो देते हैं। पाम जुमेरा की तामीर ने वैसे भी हवा के कुदरती बहाव को मुतासिर किया है और इस वजह से मटेरियल के कटाव में काफी इजाफा हुआ है। नतीजा ये है कि समुद्री रेत के जखीरे 5 साल में 40 किलोमीटर तक बढ़ चुके हैं और इन आइलैंड्स की तामीर के दौरान होने वाली ट्रांसपोर्ट ने समुद्र की हयात को बहुत मुतासिर किया है और सबसे नुमाया नुकसान समुद्र की तह में मौजूद मेरीन लाइफ को पहुंचा है। इन सब के अलावा इस प्रोजेक्ट के फेल होने की सबसे बड़ी वजह समुद्र का बढ़ता हुआ लेवल है। ये मसला सिर्फ दुबई का ही नहीं। 2017 में अबू धाबी की एक एजेंसी ने इस चीज से सबको खबरदार किया था कि मौसमी तब्दीलियों की वजह से समुद्र की सतह पर बदतरीन बदलाव आ रहे हैं। समुद्र की सतह आने वाले वक्त में 9 मीटर तक बढ़ जाएगी, जो कि दुबई और इसके द वर्ल्ड आइलैंड्स के लिए तबाही का सबब बनेगी। यूएई में तकरीबन 85% लोग साहिली इलाकों में रहते हैं और वो लोग भी इस खतरे से मुतासिर होंगे। उनको लहरों से बचाने के लिए इन जजीरों को एक बहुत बड़े वेव ब्रेकर से घेरा गया है। ये सतह समंदर से सिर्फ 2 मीटर बुलंद हैं, ताकि आइलैंड्स को लहरों से बचाने के साथ साथ इस बात को भी यकीनी बनाया जा सके कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों को बगैर किसी रुकावट के समंदर के सब नज़ारे मिल पाएं। इसका फौरी नतीजा तो समंदर की लहरों के बहाव में मसनूई तब्दीली और कमी है, जो कि खुद में समंदर में रहने वाले जानदारों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मुस्तकबिल में ये मसनूई तब्दीलियां बहुत बड़े खतरों का बाइस बन सकती हैं। 21वीं सदी में शुरू होने वाले तामीराती मंसूबों की बढ़ती हुई शरह और इस सरगर्मी से होने वाली आलूदगी से पर्शियन गल्फ की गर्मी में मजीद इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से समंदर की सतह के मजीद बढ़ने के इम्कानात हैं। यहाँ तक कि पाम जुमेरा, जो इन सब आइलैंड्स में से सबसे ज्यादा कामयाब जजीरा है, जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और बहुत सारे लोग भी रहते हैं, वहाँ पर भी पानी का खराब मयार लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस है। और ये इस प्रोजेक्ट के फेल होने की एक वजह है कि वहाँ पर पानी का मयार बहुत खराब है। मजीद इन आइलैंड्स को बनाने के लिए जो समंदर से रेत ली गई थी, वो पहले ही समुद्री जानदारों को बहुत मुतासिर कर चुकी है और ये कटाव का खतरा भी पैदा करती है, क्योंकि वो रेत अपनी जगह पर वापस लौट रही है। इन आइलैंड्स की एक बहुत बड़ी नाकामी की वजह वहाँ पर बिजली की कमी है। इन जजीरों पर बिजली की रसाई मुमकिन नहीं थी, जो कि एक बहुत बड़ी नाकामी है और मुश्किलात का बाइस बनती है, और बड़े इन्वेस्टर्स इसलिए सरमायाकारी से पीछे हट गए। ये प्रोजेक्ट इस बेस पर बनाया गया था कि पर्शियन गल्फ के नीचे से बिजली की तारें गुजारी जाएंगी, लेकिन अफसोस के इस प्रोजेक्ट पर काम ना हो सका। इसके अलावा इन प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए लाखों की तादाद में मजदूरों की जरूरत होती है और दुबई में परदेश से आए हुए लोगों की मुश्किल जिंदगी और उनको पूरे हकूक मिलना काफी मुश्किल होते हैं, जिसकी वजह से डेवलपर्स को बहुत मुश्किल पेश आई और ये प्रोजेक्ट फेलियर की एक वजह बनी। तो ये जानने के बाद कि इन आइलैंड्स के फेल होने की वजह क्या है, इस वीडियो के आखिरी पार्ट में ये जानते हैं कि इन जजीरों पर कौन रहता है। पाम जुमेरा मुमकिना तौर पर इन सब जजीरों में सबसे ज्यादा कामयाब जजीरा है, जहां हजारों की तादाद में लोग रहाइश पजीर हैं और वहां पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, रिजॉर्ट्स और होटल्स मौजूद हैं। ये आइलैंड दुबई से काफी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर आना जाना बहुत आसान है और यहाँ पर जिंदगी की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। ये बहुत बड़े लेवल पर तरक्की याफ्ता है और यहाँ बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट से लेकर छोटे घर भी मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों का रोजगार भी मौजूद है। ये दुनिया के अमीर लोगों की तवज्जो का बाइस है और वो लोग अपनी छुट्टियां गुजारने और आराम की गर्ज से यहाँ आते हैं। इसके अलावा बाकी जजीरे वीरान तो नहीं हैं, लेकिन उनमें आबादी बहुत ही कम है। इन आइलैंड्स की बहुत तशहीर की गई और इनको बहुत से लोगों तक पहुंचाया गया,
लेकिन फिर भी वहां पर आबादी ना होने के बराबर है, और इस सब की वजह आप इस वीडियो में पहले से जान चुके हैं। गूगल मैप से ली गई तस्वीर और स्पेस से ली गई कुछ तस्वीर के हिसाब से बहुत आसानी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन आइलैंड्स पर आबादी ना होने के बराबर है, और यहाँ पर तरक्कियाती मंसूबे भी बहुत कम हैं। बिजली और पानी की किल्लत भी इन जजीरों में आबादी की कमी का बहुत बड़ा सबब है। समुद्री सतह में इजाफा, सतह का कटाव और बहुत सारी वजूहात ने इन जजीरों की कशिश को बहुत कम कर दिया है, और लोग अब इन जजीरों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। इन आइलैंड्स में से एक, जो कि ग्रीनलैंड के आइलैंड पर वाक़े है, उस आइलैंड को 2006 में फार्मूला 1 के ड्राइवर माइकल शूमाकर को गिफ्ट के तौर पर भी दे दिया गया था। लेकिन इन आइलैंड्स पर अब ना तो कोई इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है, ना ही कोई इन आइलैंड्स को खरीदना चाहता है, क्योंकि सब लोग ये जानते हैं कि माहौल में होने वाली तब्दीली के बायस ये आइलैंड्स बहुत जल्द समुंदर में डूब जाएंगे, और यहाँ पर उनके लगाए गए पैसे भी, जिसकी वजह से उनको बहुत नुकसान होगा, और कोई भी इतने बड़े नुकसान का रिस्क नहीं लेना चाहता। इन आइलैंड्स की नाकामी उन डेवलपर्स और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाली कंपनीज की सलाहियत पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट जिस पर $15 बिलियन से ज्यादा खर्चा आ चुका है, उसको शुरू करने से पहले तमाम चीजों का अंदाजा क्यों ना लगाया गया।